Praise the name of Jesus. Glory to Jesus. Wonderful Jesus, I thank you. Thank you, thank you, thank you. आइए प्रभु की उपस्थिति में चलें, 2-4 मिनट अन्य भाषा में हम लोग प्रार्थना करें। हो राबाबा राबाबा रिबला Rikabala Navashandoro Rodolo Navala Navashindare Ribarara Baba Shandara Baba Ridalene Kilina Hakbara Kori Dalene Kilina Handare Delena Bara La 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 Bashi Bara Bamanava Kore Velene Veshindari Delina Bara Brani Klavala Lavashandare Kevere delena handari dalina handaro robolona khalina bashandare rivalana baba korivari dalahandare deleneve shekre bebe bebe ridalono hondoro robelina bashandari valana ba kiralana bashandare deleneve shindaro robrere brere kevelenevi Kira valana hakbara dalina vi shindoro dolona va baridale ribale ne vi shindoro dolona bara lana bashindare rekele na babari dalina hakbare kira valana baba bashindoro dolona ba shikare dele ne vi shindoro dolona bo rabbari dale ne vi shindari dalina ba rabbari dale ne vi shindoro dolona bo Kora bala nahi bare rekele nava baro shanduro dolo navo ribari barindare shindarindare rikoro dolo navara lana baba baba shindara halana ba shikere dele neve kera halana bariri dalo narindare shikoro dolo navo rolana baidare re bebe beshindoro Shibaro dani dare ribalana handari kababari dale nebe shikere dele nava shikoro dolo nava rambrari brari clavare dele lebe bebe bele neve bebe ora hola nabari shikarala nabari shindoro dolo novo shibare dele nebe shikrababari brari dolo nahandara Shikara bari dole, shikere dele nebe, shindari dali nebe, shindari bari dara ra 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 ba 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 ba, ri bro bro re, shikere dele na kali na hakbaro dolo na handari, ribana handare dele na ba, shindoro dolo na kolo na boshi ba bebe, re bebe shindoro dolo na kali na ba, Rabrari klavala lava shindorova handari delene kelina hakbaro korabalana khalina hakbare delina handari deline vi shidoro dolono kha kobara bara baba 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 hori dare re bebe shikoro dolo shobere delena khalina hakbari kiri dene kilina hakbara kira lana vashandare delene ke Rebe shidoro robari babari dalalaba here delena bashindari dalina hakbare kire belena khalina hakbaro shokere delena babra ribra riklavala bashindare delina handari riba ron hekebelina hakbara kibere dilinibi shikoro dolona handari Thank you, Holy Spirit. Thank you for doing this ministry. In Jesus' name we welcome you. Oh, in Jesus' name we welcome you. आप में से जिस किसी के भी सर में राइट साइड पर दर्द है, भारीपन है, प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, दर्द दूर हो जाए. In Jesus' name, receive your healing. Be healed. In Jesus' name. Oh, in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Doing this ministry. Thank you. Lord Jesus, thank you so much for your grace. Oh, the grace of the Lord Jesus Christ is sufficient for us, Lord. Thank you.
आइए यीशु की आराधना करें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। जय देने वाले ओ प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले राजा यीशु को जीवन भर धन्यवाद। लल्ला 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 Rida rida shindara riya rida lavara shikireda lavara. Alleluia alleluia गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। Alleluia alleluia गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। Yes, Lord, thank you for your Holy Spirit. Thank you for the divine person, Lord. Thank you for your anointing, Jesus. Thank you for choosing us, appointed us, and anointed us with your Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. All your dunamis is upon us, Lord. Yes, Lord. Father, I thank you so much you fulfill your promise. Jesus, I thank you so much for your promise you have filled us. Yes, Lord. Yes, Jesus. I'm so grateful. I'm so thankful, Lord. Thank you. I lend myself to you, Lord. I lend myself to you. Oh, I yield myself to you, Lord. And I humble myself. And I come under your mighty hand, Lord. Lord, I brought this batch of School of Holy Spirit under your mighty hand. Thank you that your hand is upon all the students, Lord. Thank you so much, Holy Spirit. Thank you. In Jesus' name, I bless all of them, Lord. Thank you. Today, we are going to see one more language. This is revealing language. You can see the wonders of God's word. You will get the revelation.
When you pray in the Spirit, the revelation Spirit will move. You will get the revelation of the Word of God. And your teaching, your preaching, your messages will be different. Oh, it is filled with the revelation. जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आत्मा में प्रार्थना करना एक प्रकाशन की भाषा भी आती है और आप प्रकाशन को प्राप्त करते हैं। आप संदेश कैसा भी आप क्यों न तैयार करें, आप तैयार करने के बाद अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। आप पाएंगे कि आप जो सोच रहे थे वो नहीं, बोल कुछ और रहे होते हैं आप। कई बार ऐसा होता है। सो वो प्रकाशन की आत्मा आपको लीड करने लगती है। तो जब आत्मा में प्रार्थना की जाती है तो हमें मालूम नहीं है, मेरा माइंड को पता नहीं चलता, रेवलेशन मूव करने लगता है। इसे रिवीलिंग लैंग्वेज कहते हैं। सो यू कैन नोट इट डाउन। रिवीलिंग लैंग्वेज इज getting the revelation of the word of God. You can see the wonders of God's word. परमेश्वर के वचन को देखने का नजरिया प्रकाशन से भरा हो जाता है। In a different way you can see. So God bless you. Thank you so much. Thank you for this 25th day, and we will start our teaching now. So आज के टीचिंग का शीर्षक लिख लें। टाइटल ऑफ द टीचिंग फॉर टुडे इज सेवन स्पिरिट ऑफ गॉड। अंडर दिस वी विल सी फर्स्ट मेन हेडिंग, डिवाइन सीक्रेट्स टू द मिरेकलस। देखते हैं हम इसमें किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे कि हम सेवन स्पिरिट के बारे में अंडरस्टैंड करें। कोई जरूरी नहीं है कि सातों स्पिरिट के बारे में मैं बोलूं। अगर मैं सातों को एक्सप्लेन करूंगा तो मिनिमम टू मिनिमम 7 डेज तो चाहिए। मैं प्रभु से कह रहा था कि प्रभु जी ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो प्रभु जी ने मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग की प्रेयर में अगुवाई की। He revealed this thing. You speak only first and last spirit, not necessary all the spirit. And क्योंकि मैंने नोटिस किया कि कुछ ना कुछ उनके बारे में आपने हर रोज सुना है। Anyway, we will see. So the topic is divine secrets to the miraculous. है ना, वो अलौकिक भेद क्या है जो चमत्कार को दिखाता है। चमत्कार का मतलब जो बातें मनुष्य के लिए असंभव हैं वो हो जाना, यूं कहो कुदरती तरीके से हो जाना, या जिसमें मनुष्य फेल हो जाता है और परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं। When you need God's intervention, that will be miracle. ठीक है, मनुष्य के बस में जब नहीं रहता। बाइबल में कई जगह जिक्र है जो बातें मनुष्यों के लिए संभव हैं वे परमेश्वर के लिए संभव है। आमीन, बोलिए आमीन। सो आप इसको नोट कर लें। वर्स जो हमारा फाउंडेशनल वर्स होगा, आइजाया 11th chapter verse 1 and 2. Praise the name of Jesus. It is written like this, there shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord.
यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। आमीन। ये प्रभु का दिव्य वचन है। इसके सुने जाने पर आप सबको आशीष हो। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, एंड हू is hearing this word will be blessed. Amen. And now, Holy Spirit, you reveal us the meaning of these verses, Lord. We commit ourselves and this batch into your hand. In Jesus' name, Amen. So आपने नोटिस किया होगा यहां पर 7 प्रकार की आत्मा का जिक्र किया जा रहा है। कौन सी 7? स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, स्पिरिट ऑफ द विजडम, स्पिरिट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, स्पिरिट ऑफ माइट, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। यहोवा का आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा अर्थात प्रभु का आत्मा। अब कुछ भी आपके बाइबल में लिखा होगा समझ लें। बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम यानी सामर्थ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और परमेश्वर के भय का आत्मा। 7 स्पिरिट के बारे में बात हो रही है। जब मैं 7 स्पिरिट बोल रहा हूं तो ये मत गलतफहमी डाल लेना कि आत्मा 7 प्रकार की है, पवित्र आत्मा 7 प्रकार की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग द होली स्पिरिट काइंड ऑफ होली स्पिरिट, 7 टाइप ऑफ होली स्पिरिट। नो नो नो, ओनली देयर इज वन स्पिरिट, दैट इज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, या यूं कहें होली स्पिरिट, जो हम लोगों को नाम दिया गया स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। ये पुराने नियम की बात है। तो पुराने नियम की ये बात पूरी हो चुकी है। अब यीशु के ठूंठ से डाली नहीं निकलेगी, वो निकल चुकी है। ये बात पूरी हो चुकी है। वो ब्रांच बाहर आ चुकी है, वो फ्रूटफुल हो चुकी है। पुराने नियम में इस चीज को इस प्रकार से लिखा है। नए नियम में ये आत्मा सत्य का आत्मा है। जब 7 आत्माओं का हम स्टडी कर रहे हैं तो हम पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया दे दूं, कहीं आप गलत फहमी में न रहें, कि जब 7 स्पिरिट का इस बात मैं कर रहा हूं, इट इज नॉट द 7 टाइप ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिट इज ओनली वन, बट दीज आर द 7 मैनिफेस्टेशन। ओके, 7 नंबर बाइबल में कई जगह पर इस्तेमाल हुआ है। एंड द 7 नंबर शोज द परफेक्शन, द फुलनेस, द अबंडेंस, रेस्ट, कंप्लीशन को शो करता है। आप पाएंगे पुराने नियम में जो पवित्र आत्मा जब किसी पर आता था तो वो मेजरेबल होता था। इन ओल्ड टेस्टमेंट पीपल रिसीव द अनॉइंटिंग इन ए मेजर, बट इन द न्यू टेस्टमेंट इट्स नॉट बाय द मेजर। Jesus alone was the first who got Holy Spirit not by measure. He received in his fullness. So when Holy Spirit move or manifest in all these 7 spirit, it brings the fullness of God. So Bible says in Colossians कि यीशु के अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। In John chapter 3 verse 34, क्योंकि
जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, नॉट बाय मेजर। ये when the Spirit of the Lord came upon Jesus, it came with fullness. It came not by measure. Same Jesus said in John chapter 20 verse 21 and 22, यीशु कहते हैं यूहन्ना 20:21-22 में कि तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं, एग्जैक्टली इन द सेम वे। और ये कहकर उसने उन पर फूंक दिया और कहा, पवित्र आत्मा लो। Why we received in measure? Why he says कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। याद है इसने कहा यूहन्ना 14:12 में, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्यों? Because the same Spirit in same measure. Why? Why he is saying like this? Because we are the joint heirs. आपने पढ़ा था रोमन 8 के अंदर, आप लोग रोज पढ़ रहे हैं, वहां पर आई थिंक आपको मिलेगा 17वें पद में, वहां पर लिखा है, तब उन्होंने उन पर रोमियो 8:17 कि हम उसके संगी वारिस हैं। संगी वारिस का मतलब पढ़ेंगे, यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। And if children, then heirs of God, and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. तो हम उसके संगी वारिस हैं, वो पहलौठा है, उसके बाद हम लोग हैं, वो बड़ा भाई है, हम छोटे हैं। तो पिता ने क्या किया, हमें उसका संगी वारिस बनाया है, हमको ले पालकपन की आत्मा मिल गई है। हमारे पास अब जो आत्मा है वो ले पालकपन की आत्मा है। बाइबल सेज इन 15 वर्स, यू हैव रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, वी आर अडॉप्टेड, वी हैव द सेम गॉड, सेम फादर। सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं कि नए नियम में पवित्र आत्मा जब मिला तो वो नाप नाप के नहीं दे रहा, अभी उसने सत्य का आत्मा दे दिया है। वो जो कुछ है वो सब कुछ मेरे अंदर है, अब मेरे हाथ में है कि मैं उसको कैसे प्रकट करूं, कैसे बाहर निकालूं। सो ये मेरे रिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, मेरी संगति पर निर्भर करेगा, मेरा और पवित्र आत्मा का व्यवहार क्या है, कैसी क्लोजनेस है, इस पर डिपेंड करेगा। जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर से ये सातों प्रकार के मैनिफेस्टेशन करेगा, तब परमेश्वर की फुलनेस मेरे अंदर नजर आएगी। बाइबल में 7 आत्माओं का जिक्र कई जगह है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी मिलेगा, जकरिया में मिल जाएगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 4 पद, 4 अध्याय 5 पद, 5 अध्याय 6 पद। इन बुक ऑफ रेवलेशन 1 चैप्टर 4, 4 चैप्टर 5, 5 चैप्टर 6। इवन इन द बुक ऑफ जकरिया 3rd chapter 9 verse, 4th chapter 10 verse, 7 eyes, 7 spirit, he looks on this earth through this। जब वो पृथ्वी पर, धरती पर देखता है तो इन 7 आत्माओं के द्वारा जकरिया कहते हैं कि परमेश्वर अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करता है। When he looks on this earth, yeah,
सो 7 टाइप स्पिरिट का जिक्र इस प्रकार से किया है। सातों आत्माएं उसके सिंहासन के सामने हैं। बाइबल में ऐसा जिक्र है कि 7 आत्माएं उसके सिंहासन के सामने हैं। फिर वो कहता है कि उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं और वो 7 दीपक परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आगे कहता है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा और उसके 7 सींग और 7 आंख थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। तो बात को समझिएगा। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड 7 नहीं, 7 मैनिफेस्टेशन है। वो क्यों है कि यीशु मसीह वो कॉर्नर स्टोन है। वी आर ऑल्सो लिविंग स्टोन। द कॉर्नर स्टोन के साथ प्रॉफिट अपोस्टल हैं। वी आर नाउ ब्रांचेस। अब हम उसकी शाखाएं हैं। All have 7 spirits, 7 eyes. So when it manifests, it shows the fullness. 7 independent manifestations of the Spirit. ये ओल्ड टेस्टमेंट में इसके नाम को बोला गया। Why the 7 Spirit? इफिसियों 5:18, यूहन्ना 14:16 हमने कई बार पढ़ लिया। प्रभु ने कहा आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। कहा, आपने सीखा, आपने पढ़ा, याद किया ये बात। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इफिसियों 5:18 में कि तुम आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। अवसर को बहुमूल्य समझो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, है ना। दाखरस से मत वाले मत बनो, वरन आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, है ना। वो प्रभु का आत्मा हमें सर्वदा के लिए मिल गया है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है। उसका नाम सत्य का आत्मा है। So when you have less than the 7 Spirit of God manifested in you, it means you don't have the fullness of the Spirit. बात समझ में आ रही है अब आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर 7 प्रकार के मैनिफेस्टेशन में आप मूव नहीं कर रहे, या 7 प्रकार के मैनिफेस्टेशन जो आत्मा के मैंने बोले, क्या यहोवा की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति और की आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और भय का आत्मा, अगर ये 7 मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे तो इसका सिंपल सीधा सा अर्थ है कि आप पवित्र आत्मा से अभी परिपूर्ण नहीं हुए हैं। कुलुसियों 2 अध्याय और अगर आप उसके 9-10 पद को पढ़ते हैं, वहां बाइबल कहती है, फॉर इन हिम द होल फुलनेस ऑफ deity dwells bodily, and you have been filled in him who is the head of all rule and all authority. इसकी गहराई को समझिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह में जब वो सदैव इस धरती पर थे, उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम, मैं उसी में भरपूर किए गए हैं जो सारी प्रधानता
और अधिकार का शिरोमणि है। ही इज द हेड, टॉप सुप्रीम, उसमें फुलनेस है। परमेश्वर जो कुछ है उसकी फुलनेस। बाइबल कहती है कोलोसियन 1:15 में, ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ ऑल क्रिएशन। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि में पहलौठा। परमेश्वर को, यहोवा को, गॉड को कोई देख नहीं सकता, किसी ने देखा नहीं, लेकिन यीशु मसीह उसकी फोटोकॉपी है। जस्ट लाइक फोटोकॉपी। अदृश्य परमेश्वर का दिखाई देने वाला रूप यीशु मसीह है, जो सारी सृष्टि में पहलौठा है। और जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा लूका 3:21-22 में, तो बाइबल के अनुसार उसमें उसकी फुलनेस थी। जीसस जब इस धरती पर वॉक कर रहे थे, ही वॉज वॉकिंग in the fullness of the God Almighty. If anyone can see the Jesus, he can see the God. He came here to represent God. बाइबल की एक वर्ष मुझे बहुत अच्छी लगती है। यूहन्ना 1 अध्याय के अंदर ही उसका जिक्र है। अगर आपने हो सकता है उसे पढ़ा हो, 18वां पद है, यूहन्ना 1 अध्याय, जॉन चैप्टर 1 वर्स 18, माई फेवरेट वर्ड। क्या लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। नो वन हैज एवर सीन गॉड, द ओनली गॉड हु इज एट फादर साइड, ही हैज मेड हिम नोन। सुन रहे हैं आप? यीशु ने पिता को प्रकट किया, और यीशु कहते हैं जो मुझे देखता है और वो पिता को देखता है। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि मैं और पिता दोनों एक हैं। याद आता है जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 में वो कहते हैं मैं और पिता एक हैं, वन not two, same. So be filled with the Holy Spirit. He is talking about the completeness or the fullness of the Holy Spirit. Revelation में हमने पढ़ा था कि chapter 5 verse 6 में 7 spirits have been sent forth into all the earth. So 7 is not a different but in one. 7 in 1, like 2 in 1, like 7 in 1. Listen, you can note it down. I am going to speak very powerful sentence now. To receive the Spirit and to have Him fully manifested in your life, these are two different things. These are two different experience altogether. पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा की छाप लगना, पवित्र आत्मा बयाने में मिलना, पवित्र आत्मा बाहर से अंदर आ जाना, ये एक अलग अनुभव है। और पवित्र आत्मा का ऊपर आना और आत्मा से परिपूर्ण हो जाना, ये डिफरेंट, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। Again I am speaking. Check it. To receive the Spirit and to have Him fully manifested in your life are two different things altogether. So what is important now? Until the Lord manifests Himself in your life fully through these 7 spirits, you will never enjoy the best of Christianity, which is the life of the supernatural and the miraculous. यदि आपके अंदर से ये सातों आत्माएं मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, तो अभी भी आपने मसीहत
या मसीही जीवन का पूरा आनंद नहीं लिया है। मसीही जीवन गॉडली लाइफ है, परमेश्वर का जीवन है, सुपरनेचुरल लाइफ है, मिरेकलस से भरी हुई लाइफ है, डिवाइन लाइफ है। ये डिवाइन सीक्रेट है कि धरती में मनुष्य की देह में रहते हुए परमेश्वर को चलते फिरते आनंद उठाना। ओ रावालीना हकबरे दिलीने भी शिदोरोदोलोनुबो रा रा बाबा बारीदा लेहे बिना। सो सातों प्रकार की आत्माओं को हम सीख सकते हैं, उसके मैनिफेस्टेशन को जान सकते हैं, उसकी गहराई में उतर सकते हैं। So God has led me in the morning. The Spirit of the Lord has told me, no need to go all the 7, because I said, Lord, only 6 days more. Many things we want to know. So God has led me, just go in 2. So first I will see the Spirit of the Lord. इसका क्या मतलब होगा जब ये मैनिफेस्टेशन होता है तो क्या होता है? Then we will see the last one, fear of the Lord. The spirit of the fear of the Lord. इसको हम दोनों को समझेंगे। बीच में जितनी है सब आपने थोड़ा थोड़ा बीच में सुना है, बुद्धि के बारे में, समझ के बारे में, युक्ति के बारे में, पराक्रम और ज्ञान के बारे में। So you can give the heading now, the Spirit of the Lord. When I say the Spirit of the Lord, Lord means God, means Jehovah. हिंदी बाइबल में लिखा है यहोवा का आत्मा। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वहां लिखा मिलेगा यहोवा का आत्मा। इंग्लिश बाइबल देखेंगे मिलेगा स्पिरिट ऑफ गॉड और स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड वर्ड इज यूज्ड फॉर जीसस। God is in Old Testament, New Testament Lord. तो Spirit, when I say the Spirit of the Lord, जब मैं कहता हूं प्रभु का आत्मा या यहोवा का आत्मा या परमेश्वर का आत्मा, it means the Spirit of Lordship. Lordship का मतलब the Spirit of Dominion, Spirit of Authority, the boldness. जब कभी प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आता है, जब भी आएगा ये आपके ऊपर आएगा। सत्य का आत्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। अब वो सत्य का आत्मा मैनिफेस्ट होने जा रहा है। जब वो अपने पहले रोल को मैनिफेस्ट करता है, मीन्स प्रकट करता है, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा जब अपना प्रकटीकरण करता है, तो वो पहला प्रकटीकरण जब करता है, जब भी करेगा प्रभु की आत्मा का, तो हमेशा प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आएगा। He always comes upon, understand? फिर सुने, जब सत्य का आत्मा प्रभु की आत्मा को प्रकटीकरण में लाता है, तब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आता है। जब आपके ऊपर आता है तो आपके अंदर बोल्डनेस आती है, डोमिनियन आती है, डुनामिस, माइटी पावर, अद्भुत कार्य करने वाली बातें। इसका मतलब ही पुट्स यू इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन। जो पर्टिकुलर सिचुएशन बन गई है, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, जो हालात में आप हैं, उस हालात पर जयवंत होने के लिए प्रभु का आत्मा जब आपके ऊपर आता है तो आपको उस सिचुएशन का इंचार्ज बना देता है। आप लीडर बन जाते हैं, आपको एम्पावरमेंट मिलती है। यू विल बी एम्पावर्ड देन। तो आप कहते हैं स्पिरिट ऑफ द लॉर्डशिप इन ऑपरेशन, मीन्स प्रभु का आत्मा क्रियाशील होने लगता है। आपको मालूम, जब ये आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप लीडरशिप की अनॉइंटिंग में मूव करेंगे। लूका 13 अध्याय 31 और 32 पद में
कुछ लोगों ने आकर यीशु मसीह से कहना शुरू किया, वो फरीसी लोग थे, यीशु से कहने लगे, यीशु मसीह अरे यहां से निकल जा। क्यों? क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। सुने जीसस ने क्या रिप्लाई किया। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दे कि देख मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, बीमारों को चंगा करता हूं, और तीसरे दिन थर्ड डे मैं अपना कार्य पूरा कर। देख रहे हैं आप यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? राजा को, किंग हेरोदेस को क्या मैसेज भेज रहे हैं? जाकर उस लोमड़ी से कह दे। कोई आदमी जाकर राजा को ऐसा कह देगा जब विरोध हो रहा हो, अपोजिशन चल रहा हो, तो आप ऐसे वर्ड बोल सकते हैं? आज हमारे देश में अगर आप सरकार की हाँ में हाँ ना करो तो आपको राष्ट्र विरोधी कह देंगे। ऐसे में आपको बोल्डनेस चाहिए, डोमिनियन चाहिए। इट मीन्स वो जो स्पिरिट आपके अंदर है वो मैनिफेस्ट करे स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड के रूप में, देन यू विल गेट द बोल्डनेस। वो हियाब आएगा और आप तब एडमिनिस्ट्रेशन को, किंग्स को, आप पीएम को, प्रेसिडेंट को, ओहदे पे जो बैठे हैं, आप उनसे हियाब के साथ बात कर सकेंगे। तो ये आपको लीडरशिप में, प्रभु की लॉर्डशिप में, आपको उसकी डोमिनियन में, प्रभुता में, उसके अथॉरिटी में आप मूव करने लगते हैं। जब आदम को बनाया गया था तब परमेश्वर ने उसको डोमिनियन दिया था, अथॉरिटी एंड डोमिनियन, कि तू इस पृथ्वी पर अब राज कर। और उसने वो अधिकार, वो प्रभुता उसने शैतान को दे दी। लेकिन शुरू में परमेश्वर पिता ने उसको ये अधिकार और प्रभुता दी थी। इसलिए जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने फर्स्ट एडम की समानता में आके शैतान के सर को कुचला, ब्रेन हेमरेज किया, मृत्यु अधोलोक की कुंजियां वापिस ली, और स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो मुझे दिया गया है, नाउ यू विल यूज दिस। वो कुंजियां हमें दी। वो कुंजियां क्या हैं? वो कुंजियां अधिकार और सामर्थ्य को दर्शाती हैं, और हमें अधिकार दे दिया है यीशु मसीह ने कि हम जो कुछ इस पृथ्वी से खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, जो हम पृथ्वी पर बांध देंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। सुन रहे हैं? ये कौन से स्वर्ग की बात हो रही है? पिता परमेश्वर के स्वर्ग की बात नहीं। वहां तो मेरे पिता की चलती है वहां वो बांधने और खोलने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को यह भी नहीं मालूम कौन से स्वर्ग की बात हो रही है। ये सेकंड हेवन की, सेकंड स्काई की बात हो रही है, जहां अंधकार की दुष्ट शक्तियां हैं, प्रधानताएं हैं, अधिकारी लोग हैं, दुष्ट की अधिकार है। तो मेरे को अधिकार दिया गया है कि शैतान की सारी सामर्थ को बांध, अंधकार की शक्तियों को बांध, गेट आउट कर उसे। ये अथॉरिटी हमारे पास है। तो जो कुछ मैं बांधूंगा इस पृथ्वी पर बंद कमरे में बैठ के, वो उस आकाश में जहां अंधकार की शक्तियां रहती हैं वो बंध जाएंगी। हेवन से मेरा कनेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। जो मैं खोलना चाहूं वो खोल सकता हूं बंद कमरे में बैठ के। दैट इज नोन एज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ये आपका आत्मिक युद्ध है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि क्या होता है। इस सामर्थ्य का अर्थ से क्या मतलब है। आप देखिए, जब एलिया के ऊपर ये आत्मा आता था, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, और जब उसके ऊपर आया तो उसने आहाब राजा जो था उससे किस प्रकार से बात की। आहाब राजा इसको मार डालना चाहता है, लेकिन जब एलिया के ऊपर प्रभु का आत्मा आता है, देखिए क्या सामर्थ आती है। एलिया प्रभु का सेवक किंग से कैसे बात करता है। जब प्रभु का आत्मा उसके ऊपर है, लॉर्डशिप जब उसके ऊपर है, डोमिनियन जब उस पर है,
वो आहाब राजा से कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। उसका उसने एंड बता दिया, फ्यूचर बता दिया। आप पढ़ लेना, पहला राजा 21वां अध्याय, आप उसे 17 पद से आगे जितना पढ़ना चाहो पढ़ लेना। सब इसी प्रकार की बातें वहां पर मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट किंग, यस। और जब आहाब ने एलिया को देखा तो आहाब ने कहा, ए मेरे शत्रु, तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया है। और इसका कारण ये है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला। इस राजा ने इजबेल के हाथ अपने आप को बेच दिया, और जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में बुरी हैं वो सब करने लगे। तो एलिया को इतना हियाब आता है और एलिया बात करने लगता है। आगे आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि एलिया कहने लगता है, इजबेल के विषय में भी बताता है कि जिसके हाथ तूने अपने आप को बेच दिया है उसकी हाँ में हाँ तू मिला रहा है, और तू परमेश्वर के दृष्टि में जो बुरा है वो काम कर रहा है, इसलिए तेरा अंत ये होगा। उसने कहा, यिज्रेल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा लेंगे। सी द एंड। बाइबल कहती है उसके 25वें वर्ष में, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। आज भी कंडीशन यही है। कई क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, इवन लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे जो बैठे हैं, उन लोगों ने अपने आप को दुष्ट के हाथ में बेच दिया है। कई सेवकों ने इजबेल की स्पिरिट जो मूव कर रही है दुष्ट के हाथ में बेच दिया है। लेकिन हम लोगों को अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में बेचना है, यीशु को बेचना है। यीशु ने हमें खरीदा है अपने लहू से। अगर आपको इस बात का प्रकाशन है, whom you are sold, तो आप उसकी बातें मानेंगे जिसको आपने बेचा है। तो मुझे और आपको अपने आप को, ये यीशु को, पवित्र आत्मा को सेल आउट होना है, नॉट टू डेविल। जिसको आप बेच देंगे उसके काम आप करने लगेंगे। यहां किंग ने ऐसा कर दिया। कई देशों में जो लीडर्स हैं वो लोग दुष्ट के हाथ में अपने आप को बेच रहे हैं, जस्ट नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी एंड मनी के लिए। एंड होल कंट्री इज सफरिंग, पीपल आर सफरिंग नाउ। यू सी इवन चाइना, you see even India, in Nepal, people are suffering unnecessary because the leaders are sold themselves to the devil, and devil is controlling them. He's moving through them. Whatever the decision they are going to take, that will be come upon the people of the country. So आपने देखी बोल्डनेस को? Have you seen the boldness which carrying by prophet Elia? The Spirit of the Lord is upon him. You can see in Joshua also. In the book of Joshua chapter 1 verse 5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. See, परमेश्वर कहते हैं तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। हियाबन, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। In 9th verse God said, the word of the Lord says, have I not commanded you? Be strong and courageous, do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you for wherever you go. In book of Matthew 28 verse 20, Bible says,
Jesus, he himself said this thing, I will be with you for ever and ever. जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. वो स्पिरिट हमारे साथ है, हमारे अंदर, हमारे ऊपर है. जीसस ने कन्फेस किया. मुझे याद है जब वो जंगल से बाहर निकले, लूका 4 अध्याय और उसके 14 पद में, जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के बाहर आए तो लोगों ने उन्हें अपने यहां इनवाइट किया. 18वें पद में उनको चर्च ने बुलाया एंड वहां पर आते ही सबसे पहला सेंटेंस उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? प्रभु का आत्मा मुझ पर है. द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी. Means I am authorized, I am appointed, I am anointed, I am representing God. No one can stand before me. The lordship, the dominion, the boldness, the authority, all is upon me. आप देखें, पॉल पवित्र आत्मा से भरा हुआ, प्रेरितों की पुस्तक उसके 18वें अध्याय में जब पौलुस का विरोध होने लगा जगह जगह और उसका मन कमजोर होने लगा और उसने प्लानिंग में थोड़ी चेंजेस करने की कोशिश की, रात को ही प्रभु ने दर्शन दिया. प्रेरित 18 अध्याय 9 पद से 11 पद तक पढ़िएगा. बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 18 वर्स 9 to 11 कि प्रभु ने रात में उसे दर्शन दिया और पौलुस से कहा, पौलुस मत डर, कहे जा, चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं. हल्लेलुया. कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना कर पाएगा, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे साथ हैं. जब उसने ये बात सुनी, उसके अंदर हियाव आया. बाइबल कहती है जहां विरोध हो रहा था वहीं पर वो 1.5 साल तक रहकर परमेश्वर का वचन सिखाता रहा. नॉट ओनली प्रीचिंग but giving teaching, means making disciple, making leader, raising the army for the Lord. बाइबल कहती है 2 तिमोथी 1:7 में कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है. वाह. आपको याद है पौलुस का चेला था तिमोथी, जवान चेला, और दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय और 7 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार से कह रहा है. 1:7 For God gave us a spirit not of fear but of power, love and self-control. Wow. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Rike lehe beniki lina ba शिखरोदो लोनो बुबोरे. ये हेस्केल की पुस्तक से मैं कुछ बताऊं आपको. अब खोलें ये हेस्केल की पुस्तक. आज सुबह जब मैं मनन कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात दिल में डाला. और आप पढ़ना, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, इवन तीसरा अध्याय भी पढ़ जाना. जस्ट मैं वहां से एक आपको बात दिखाना चाह रहा हूं कि क्या हुआ जब ये हेस्केल के ऊपर पवित्र आत्मा, उसकी शक्ति जब उस पर आती है. बाइबल कहती है 28वें वर्ष में, जैसे वर्षा दिन के बादल में धनुष दिखाई पड़ता है वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था. यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था. उसे देखकर मैं मुंह के बल गिर गया. तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कि कोई मुझसे बातें कर रहा है. जब ये परिस्थितियां बनी तब उसने एक दर्शन देखा और परमेश्वर की महिमा को देखता है, तेज को, उसकी ग्लोरी को. और दूसरे वचन के शुरू में लिखा है, उसने मुझसे कहा, ए मनुष्य की संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो. वो गिर गया था और मैं तुझसे बातें करूंगा. सी, जब प्रभु का आत्मा और प्रभु का वचन आप अलग नहीं कर सकते.
मैंने कहा था ना, जहां आत्मा आएगा वचन आएगा, जहां वचन होगा वहीं आत्मा मूव करेगा। ये भी नोट कर लें। कई लोगों ने सवाल किया कि आत्मा कब आता है, कब मूव करता है, कहां मूव करता है। लिसन, मैं यही बता दूं जल्दी से, अगर मौका होगा तो हम इस पे टीचिंग भी ले सकते हैं कि जहां परमेश्वर का वचन होता है वहीं आत्मा मूव करता है। जहां यीशु का लहू होता है वहीं पवित्र आत्मा मूव करता है। जहां यीशु की आराधना होती है, जहां यीशु की महिमा गाई जाती है, वहां पवित्र आत्मा मूव करने लगता है। ये शॉर्टकट तरीका है होली स्पिरिट को मूव कराने का। आप वर्शिप स्टार्ट करो, आप वर्शिप जैसे ही करोगे आत्मा में यीशु को ऊंचा उठाओगे, यीशु की आराधना करोगे, होली स्पिरिट मूव करने लग जाएगा और मिरेकल होने लगते हैं। बहुत ही गवाहियां हैं क्रूसेड्स में, आप देखें तो ये जब इसने परमेश्वर की महिमा को देखा, आत्मा इससे बात करना चाहता है, ये गिरा हुआ है, उसको ये उठाता है, कहता है उठ खड़ा हो। उसके पांव में, वो अपने पांव में बल महसूस करने लगता है जब उसने ये बात सुनी। लिखा है दूसरे पद में, जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। The presence of Almighty, when this come, the Spirit of the Lord when comes, what will happen? The work, how Holy Spirit works, it will start. He will enter in you, He will set you upon you, He will give strength to stand your feet, just He did as Ezekiel. So acknowledge the Holy Spirit. He is actually doing the work. एजकेल को मालूम था सब, वो समझ रहा था, वो स्मार्टनेस में दिखा रहा था क्या, कि उसे पता है ये प्रभु का आत्मा मुझ में काम कर रहा है। 3 अध्याय तक आप पढ़िएगा, वहां लिखा है, तब उसने कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। क्या मिला है? परमेश्वर का वचन, आत्मा का भोजन। इस पुस्तक को खा ले, तब जाकर इजराइल के घराने से बात कर। फर्स्ट ईट, देन गो, देन स्पीक। यानी वचन को खाना है, अपने अंदर भर ले, तब तू जा, मैं तेरे संग जा रहा हूं, और तब जो तेरे अंदर है वो उसे तू जाकर बोल दे। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। पुराने नियम में आपने पढ़ा था ना, ओपन योर माउथ। प्रभु ने कहा अपना मुंह खोल, मैं इसे पसार, मैं इसे भर दूंगा। इसने भी मुंह खोला और परमेश्वर ने पूरी पुस्तक इसको खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले। मीन्स उसको डाइजेस्ट कर, मीन्स मेमोराइज कर ले। मेमोराइज कैसे होगी? जब तुम मेडिटेट कर रहे होगे, जब तुमने इसे स्टडी किया होगा, रीड किया होगा, सुना होगा, और अपनी अतड़ियां इसी से भर ले। यानी फुल ऑफ वर्ड ऑफ गॉड हो जा। वचन देहधारी हो गया, अब मेरी देह को वचन धारण करना है। अतः मैंने उसे खा लिया और फिर मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य ठहरी। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। ये बात मुझे सुबह पवित्र आत्मा ने प्रकाशित की, इसलिए मैंने आपको ये सब बोल दिया है। हाउ इंपॉर्टेंट टू सिट विद द वर्ड ऑफ गॉड, हाउ इंपॉर्टेंट टू फिल योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड हैज द पावर, जस्ट लाइक दोधारी तलवार। ये पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपके साथ बहुत अद्भुत तरीके से कार्य करेगा। पढ़ना प्रेरित 8 अध्याय 39-40 पद में
जहां खोजे का जिक्र है, रथ पे बैठा जा रहा है, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा फिलिप को उठा ले गया। हेलो, उठा ले गया। दैट्स व्हाई जीसस सेड इन एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8, when the Spirit of the Lord, when the Spirit come upon you, you will receive power. With that power you can give my witness. तो होली स्पिरिट जब आपके ऊपर आता है, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड ऑलवेज कम अपॉन यू, वेन एवर ही मैनिफेस्ट स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, देन स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल कम अपॉन यू, यू विल बी स्ट्रेंथन, यू विल रिसीव द पावर. Paul says in 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God does not consist in talk but in power. परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय हम लोग 4 पद से पढ़ेंगे. सुने संत पौलुस की टेस्टिमनी, वो क्या कहते हैं. माई स्पीच एंड माई मैसेज वर नॉट इन plausible words of wisdom, it's not a polished word of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. मेरे वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और आत्मा के सामर्थ का प्रमाण है. इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, मनुष्यों की लुभावने वाली बातों पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो. योर फेथ माइट नॉट रेस्ट इन द विजडम ऑफ men बट इन द पावर ऑफ गॉड. ओ रावालीना खबरो दो लेने बेबे शिखरो बोबा. यस माय डियर, हम शुरुआती दौर में जब सेवकाई करते थे एज ए इवेंजलिस्ट, भीड़ की भीड़ आती थी, अखबारें भर जाती थी. मुझे याद है हमारे घर से 45 किलोमीटर दूर एक सिटी है पीलीभीत, रेलवे का जो हॉल था उसमें मीटिंग हो रही थी. फर्स्ट डे ही हॉल भरा हुआ था. सेकेंड डे अस्पतालों के मरीज लोग, ग्लूकोज की बोतल लगी हुई, लोग अपने अपने मरीजों को ला रहे थे और परमेश्वर की सामर्थ पूरे एरिया में छाई हुई थी. जो आ जाता था वो चंगा हो रहा था. फाइनली सेकंड डे कुछ गुंडा एलिमेंट्स वहां आ गए. आई थिंक कुछ डॉक्टरों ने मिली भगत करके ऐसा किया. उन्होंने हमारे एक इवेंजलिस्ट को थप्पड़ मार दिया. मीटिंग डिस्टर्ब हो गई. हम लोग भी चले गए. जहां जाते पीछे पीछे लोग आ रहे थे. जब घर पहुंचे डीएम का फोन आया, आप लोग मीटिंग मत रोकें, मीटिंग अपनी करिए. दिल्ली से लोग आए, उन्होंने वीडियो कैमरे लग गए, पीएससी के ट्रक आके खड़े हो गए और हॉल भी फिर लास्ट डे खचाखच भर गया. मुझे मालूम नहीं कहां से लोग आ रहे थे. स्टेज पर मैं अपना ब्रीफकेस रखने की जगह नहीं थी मेरे पास. मेरी बाइबल भी किसी ने वहां से गायब कर दी उसने. धन्यवाद हो, 45 रुपए वाली बाइबल थी, छोटी सी. मैसेज के बाद मैंने एक टेस्टिमनी केवल हॉल के अंदर किया और बाद में हमने कहा कि ऐसा है कि हम लोग बाहर प्रार्थना करेंगे. मैंने सबसे कहा कि लोग इतना विरोध कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आप लोग फिर भी भीड़ की भीड़ चली आई. ऐसा क्यों कर रहा आपने? क्यों आए? किस लिए आए? एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई और धीरे धीरे चलती स्टेज की तरफ आई. हमने माइक उसे पकड़वाया और उसने माइक पे बोला. पहले तो उसने गालियां दी लोगों को माइक पे कि इन लोगों ने मीटिंग खराब की, यहाँ दुआ हो रही थी, बीमार चंगे हो रहे थे. अखबारों में मालूम क्या छप गया? एसएसपी का स्टेटमेंट छपा, क्या बीमारों का चंगा होना प्रभु यीशु की ओर से है. इस प्रकार के हेडिंग थे. मेरे पास कटिंग रखी है. बहुत शुरुआती दौर की बात है. मैं समझता हूं ये होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो
97, 98, 99 लाइक दिस, उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको। खैर उस लेडी से हमने पूछा आप क्यों आई हैं इतनी बुजुर्ग बूढ़ी होके भी? बोली मेरे साथ मेरी बेटी आई थी, वो अंधी थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन जब दुआ हुई स्टेज से, हमको तो मालूम ही नहीं भीड़ इतनी है, हम तो स्टेज से प्रार्थना कर रहे हैं, और होली स्पिरिट ने उसको टच कर लिया और मेरी लल्ली जो है अब देखने लग गई है। अरे मैंने उसके हाथ से माइक पकड़ा और डीएम वहां मौजूद थे, क्योंकि डीएम के प्रेजेंस में मीटिंग हो रही थी। मैंने कहा जिलाधिकारी महोदय आप देखिए ये लेडी क्या बोल रही है। ओ परमेश्वर की इतनी महिमा हुई। एक जगह पूरनपुर में मीटिंग हो रही थी, बरसात हो रही थी, भयंकर बरसात में लोग बैलगाड़ियों से कारों से आ रहे हैं, अन्य जाति ऐसे टूटा हुआ था, छोटा तबका बड़ा तबका सब तरीके के लोग वहां आए हुए थे, वो भी कटिंग रखी हुई है। नेक्स्ट डे अखबार में छपा हुआ था, हम तो अखबार में छपवाते नहीं थे, जो विरोध करते थे वही छपवाते थे। और जानते हैं उसमें क्या लैंग्वेज लिखी हुई थी? बिल्कुल प्रेरितों की पुस्तक में जो लिखा है वैसा ही। वहां पर ये लिखा हुआ अखबार में लिखा था कि ऐसा लग रहा है मानो कि मैं एग्जैक्ट वर्ड आपको याद करके बोलना चाह रहा हूं। वहां ये लिखा था कि ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग से परमेश्वर नीचे उतर आया है। आपको मालूम प्रेरितों की पुस्तक में इस प्रकार का गवाही लिखी है कि जब चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, मैं 1 मिनट चेक करता हूं कहां लिखा है, फिर आपको बताता हूं। प्रेरितों के 14वें अध्याय में लिखा है, एक्ट चैप्टर 14, जब लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव से निर्मल था, लंगड़ा था जन्म का, वो चंगा हो जाता है। तो बाइबल में लिखा है 14 अध्याय के 10 पद में कि उसने ऊंचे शब्द से कहा और अपने पांव के बल सीधा खड़ा हुआ। वो उछलकर जब चलने लगा, लोगों ने पौलुस का यह काम जब देखा तो लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। बिल्कुल यही शब्द लिखा था, मानो ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर इस सभा में उतर आया है। ये वर्ड लिखा हुआ था अजीजों। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्यों मैं ये गवाही सुना रहा हूं, कि जब स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड मैनिफेस्ट होता है इस फॉर्म में, तो आप उस सिचुएशन के ऊपर लीडर घोषित हो जाते हैं। आत्मिक दुनिया में परमेश्वर आपको उस सिचुएशन के ऊपर इंचार्ज बना देता है। उस वक्त जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। थाने के अंदर जब पकड़ के ले गए, मैं आपको बताऊं, थानेदार और भीड़ खड़ी हुई, तो थानेदार बोला जो तुम वहां कर रहे थे वो यहां करो। अब मेरे साथ एक भाई था, वो बेचारा रोने लग गया, कमजोर था एक तो, और उसी ने मीटिंग अरेंज की हुई थी। पुलिस थाने का अनुभव उसे भी नहीं था, मुझे भी ज्यादा नहीं था। वो भी घबरा गया, लेकिन प्रभु ने मुझे हियाब दिया। जब वो रोने लग गया, वो क्यों रोने लगा, उसको थानेदार ने कहा इसके साबुन से हाथ धुलाओ। पहले तो हाथ धुलाए गए, फिर 1 बाल्टी पानी डाल दिया उस पे। अरे उनको ये था कि शायद हम लोगों ने हाथों में कुछ लगा रखा है, हम जिसकी ओर हाथ बढ़ाते, हम हाथ घुमाते यूं करके, भीड़ की भीड़ गिर जा रही थी। तो वो उनका ये कहना था कि आप कुछ लगा के आए हैं अपने हाथों में और आप हाथ आगे बढ़ाते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं। तो हाथ धुलवा दिए, नहला दिया, बोले अब जो तुम वहां कर रहे थे करो। अब मैं उन्हें समझाऊं बार बार, भाई साहब ये कोई मंत्र तंत्र तो है नहीं, हमने कोई ऐसी कोई सिद्धि तो पाई नहीं, ये तो प्रभु की मर्जी है, वो जब चाहे जहां चाहे जो चाहे करना वो करेगा, हम कैसे आपको ये बात कह दें। तब तक वो रोने लग गया लड़का। जब वो रोने लगा तो थानेदार और गुस्सा करने लगा और उसको डंडा मारने की कोशिश की। तब तक उसने हाथ अपने स्वर्ग की ओर उठा लिए और रो रो के एक लाइन की प्रार्थना की। उसने कहा प्रभु यीशु तू अपना जलवा दिखा दे, बस इतना ही कहा। 3 बंदूकधारी पुलिस वाले गिर गए, वो दरोगा भी गिर गया। लो कर लो बात। थाने के अंदर अब तो दूसरे लोग आए उन्हें उठाने, अब वो चौड़ा हो गया।
हियाव आ गया, बोले इसको टच नहीं करना, अगर छुओगे तुम्हारा भी यही असर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब वो उठे तो दरोगा साहब बोले, ए कुर्सी लेके आओ। अब हमारे लिए कुर्सी मंगाई गई, बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, जब कभी आप आए सूचना दे दें बस थाने में। लाओ भाई इनके लिए चाय लाओ, मीठा उठे का बंदोबस्त करो। लो जी, बर्फी भी आ गई, समोसा भी आ गया, चाय भी आ गई। बातचीत हुई और थोड़ी देर बाद थानेदार ने बोला, अरे इनको जीप में बिठाओ और इनको रेलवे स्टेशन छोड़ दो। फ्री में हम रेलवे स्टेशन पहुंचा दिए गए। सी, क्या मैं कहना चाह रहा हूं? When the Spirit of the Lord manifests upon you, you will be in charge for particular situation. और परमेश्वर अपनी महान सामर्थ को प्रकट करेगा, अपनी महिमा को लेगा। आपको याद है जब आंधी तूफान आया, यीशु ने आंधी तूफान को कैसे रोक दिया एकदम से, नाव में जब वो था। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड उसके ऊपर था, वो मैनिफेस्ट हुआ और उसने नेचर को भी कंट्रोल किया। ही इज स्टिल नॉट ओनली स्टिल और स्मॉल वॉइस, व्हेन दिस मैनिफेस्ट you may not be talking, you will start seeing the things. Oh yes, you will see the things. It should be our prayer. So prepare yourself for him. Is depend upon your hungerness. Is depend upon your hunger for the Holy Spirit. Holy Spirit does not force himself on anybody. So question is, how much do you want him? आप उसे कितना चाहते हैं? If you want him, he will fill you. ये आपके ऊपर है, आप कितना आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं। Always remember, Holy Spirit is the boss. He is our director. We can't shake him up to get him to do things. आप उसे अर्न नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके साथ संगति करके, उसको प्रसन्न करके, उसका साथ लेकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। So instead we prepare for him. If you are prepared, you will be used by Master. So prepare yourself. अपने आप को तैयार करें, उसके योग्य ठहराएं, उसके लायक अपने आप को बनाने की कोशिश करें। वो क्या चाहता है उस हिसाब से करें। बाइबल कहती है, 2 तिमोथी 2 अध्याय 21 पद में, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन पवित्र ठहरेगा, ताकि स्वामी के काम आए और हर भले काम के लिए तैयार रहे। घर में बहुत से बर्तन है ना, तो जो बर्तन साफ सुथरा होगा वही स्वामी के काम आएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप अपने 6 फुटे शरीर को शुद्ध और पवित्र करें, तैयारी में रखें, प्रिपेयर करें, आग हमेशा जलने दें। अगर ये आप पवित्र ठहरेंगे, रखेंगे, शुद्ध रखेंगे अपने आप को, तो आप स्वामी के काम आएंगे। If you have desire to use by God, God wants to use you, but He wants you to be ready for Him. He wants you to be cleansed, to be separated, and to be sanctified. You have to be cleansed, you have to be separated from the world, and you have to be sanctified. Then you will be ready for Him to use you. आज मेरी और आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु जी इस निर्बल पात्र को आप इस्तेमाल करें। जब ये निर्बल पात्र
स्वामी के हाथ में आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये कितना भी कमजोर पात्र क्यों ना हो, अगर ये उसके लायक है, उसके हाथ में आ गया, अगर स्वामी के हाथ आ गया तो आप स्वामी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, अपने स्वामी की आप महिमा करने पाएंगे। तो पहली चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सत्य का आत्मा जो आपके ऊपर आया है, आपके अंदर है, ये 7 प्रकार से मैनिफेस्ट अपने आप को करता है, जिसमें से पहली मैनिफेस्टेशन मैंने बताया, दैट इज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। सो प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट टाइम हम दूसरी बात सीखेंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप लोग रोमन 8 अब तक तो याद भी हो गया होगा। आज तो 25 दिन हो गए उसको पढ़ते हुए। जब आप एक लाइन पढ़ें, साथ में आत्मा में प्रार्थना करें, उसका प्रकाशन भी आएगा, याद भी जल्दी हो जाएगा, आप अध्ययन कर पाएंगे, मनन कर पाएंगे। ओके, कल का वचन याद कर लिया होगा। कल मैंने दिया था प्रेरित 2:38। आज का वचन है प्रेरित 19 अध्याय 2 पद। कभी मौका होगा इस पर हम लोग संदेश सुनेंगे। चैलेंजिंग मैसेज, एक्ट चैप्टर 19 वर्स 2। इसको आप याद कर लेंगे। ओके, आइए 2-3 मिनट हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें और सेशन को क्लोज करें। Just give thanks to the Holy Spirit. Oh, thank you, thank you, thank you, Holy Spirit. I give you all the honor, all glory to you. Thank you so much for teaching us today. Lord, it is my desire that every student receive this revelation. Lord, इनके अंदर अपनी भूख प्यास जगाएं. Make them more thirsty, more hungry. And I pray, Lord, Holy Spirit, you manifest at least this first manifestation, the Spirit of the Lord. All these manifestation, Jesus, you have. Lord, we are your brother, sister, same Spirit you have given to us. So I pray, let your Spirit manifest in the Spirit of the Lord. Yes, Lord, give us this experience. Thank you, thank you, thank you, Lord. O Rabba Baba, Shidoro Dolona Khalina Hakbare Dilina Handare Delene Bi, Shibare Delina Khalina Hakbaro, Kore Belene Kilina Hakbara, Shindoro Dolona Handari Delelebe, Rebre Reke Benini Vi Shindoro, Ravlivana Handari Delina Khalana Ba, Hebere Delana Khalina Bashadoro Dona, Rabana Handari Dalene Kilina Hakbaro, Rabbe Rabona Handaro Dolina Kebe, Kira Walana Kalina Hakbare Dini Bibi, Shivare Delena Bi, Ribolona Kalina Hakbara. Lord, we dedicate our eyes to you, we dedicate our tongues to you, we dedicate our heart, our ear to you, Lord. Use it for your glory, Lord. यूज इट। प्रभु जी, जैसा भी मैं हूं, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप इस पात्र को अपने हाथों में लें। मेक मी अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स लॉर्ड। यस लॉर्ड, जब आप मुझे इस्तेमाल करेंगे तो मैं बहुतों के लिए आशीष का कारण बनूंगा। प्रभु, मैं सारी महिमा आदर आपको देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस बैच के लिए और इन सबको, और अपने आप को आपके नाम से आशीष कहता हूं। और प्रभु, आपका आशीर्वाद प्रदान करते हैं हम इन्हें कि अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता इस बैच के साथ 45 स्टूडेंट एंड विद मी एंड माय फैमिली हमेशा होती रहे, प्रभु यीशु जी के महान समर्थी नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।